Good morning, students. Today we learn about the differences between plant cell and animal cell. So look at the picture. This one is plant cell and this one is animal cell. First I start from the outside. This is cell wall. Cell wall which is present in plant cell but absent in animal cell. There is no cell wall. The hard, strong celluloid structure, cell wall is present in only plant cell but absent in animal cell. This is the first difference. Next, this one is called vacuole. Vacuole is very much large in plant cell, but vacuole, if there is any vacuole in animal cell, that is too small, otherwise it is absent in animal cell. Okay. Next, centrosome. Centrosome is present in animal cell, which take an active part in cell division, which consists of two centrioles. This is present in only animal cell but absent in plant cell. Okay. And this is plastids. Plastids is present in only plant cell and absent in animal cell. So these are the main difference between plant cell and animal cell. Another particle is lysosome. Lysosome is present in animal cell but absent in plant cell. So these are the main difference. The 5 differences there. Look at your book. There are 5 differences written. Page number 33. Cell wall is present around the cell membrane. This is cell membrane and here is 2 membrane. One is cell membrane and another is cell wall. So cell wall is present around the cell membrane in plant cell, and in animal cell, cell wall is absent. Plastids are present in plant cell and plastids are absent in animal cell. Next, centrosome is absent in plant cell and centrosome is present in animal cell. Next, vacuole, a large vacuole is present and vacuoles are absent, or if present, they are very small. Next, lysosome. Lysosome is absent in plant cell and lysosome is present in animal cell. So, all these 5 are the main difference of plant cell and animal cell. Or other than these 5, smooth ER matlab endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum, nucleus, cytoplasm, nucleolus, mitochondria and Golgi bodies. All these are common in both plant cell and animal cell. So you have to draw this picture separately in one page and point out all the cell organelles in it. Okay. Next we learn about cell division. Cell division. What do you mean by cell division? Cell division means एक सेल से 2 सेल का जन्म होना या 2 सेल से 4 सेल का जन्म होना, इसको कहते हैं सेल डिवीजन. सेल डिवीजन बहुत ही जरूरी एक फंक्शन है. जो सेल डिवीजन में हिस्सा लेते हैं एक सेल, उसको कहते हैं पेरेंट सेल, एंड जो तैयार होते हैं नए सेल, उसको कहते हैं डॉटर सेल. तो माने कि एक सेल धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है. जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना ग्रोथ के लिए मदद करते हैं और ग्रोथ होता है. धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसका जो न्यूक्लियस वो पहले बहुत बड़े हो जाते हैं और बीच में से वो एक डिवीजन आप लोगों को नजर आ रहा है. फिर ये दोनों हो गए और साइटोप्लाज्म भी 2 हो रहा है. यहाँ पे एक डिवीजन नजर में आ रहा है आप लोगों को. और ऐसे ही करके एक सेल से
2 सेल बन जाते हैं, एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। और सेल डिवीजन यूजुअली प्लांट सेल में एंड एनिमल सेल में सेल डिवीजन तो चलते ही रहते हैं, क्योंकि एक सेल का जो लाइफ स्पैन होता है वो खत्म हो जाने के बाद, उसको डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद नए सेल का उस जगह लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जैसे कि हम लोग का जो रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन खत्म हो जाने के बाद वो मर जाते हैं एंड नए सेल उससे बदले में वहां पर जो जन्म लेता है उसकी जगह ले लेते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं नए सेल से। इसका जो रेट है सबसे हाई है। जैसे कि रेड ब्लड सेल 1 मिनट में 2 मिलियन रेड ब्लड सेल डेथ हो जाते हैं एंड उसका जगह ले लेते हैं नए ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। तो ऐसे ही करके हम लोगों का बॉडी में बहुत सारा जो सेल्स है अलग अलग, वो डेथ हो रहा है उसका और नए प्लेन का जन्म हो रहा है जिसमें वो जगह दे रहा है। अगर हम लोगों का बॉडी में कई जगह पर फट जाते हैं, यहाँ पर अगर चीज जाए तो ये जगह जो होते हैं यहाँ पर भी सेल का ग्रोथ होने से ही ये जगह हील अप हो जाते हैं। तो ऐसे सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कई सेल ऐसा भी है जो सेल डिवीजन नहीं करते हैं, जैसे कि हम लोगों का नर्व सेल जो होता है वो अगर किसी भी तरह वो डैमेज हो जाए तो उसको रिप्लेस होना मुश्किल है, क्योंकि वो नए सेल से रिप्लेस नहीं होता है। और बाकी बहुत सारा सेल है जो कि रिप्लेस हो जाते हैं और हील अप हो जाता है। अगर वो कहीं फट जाए या टूट जाए, डैमेज हो जाए, खराब हो जाए और मर जाए तो उसकी जगह ले लेते हैं। तो सेल डिवीजन का डेफिनेशन आप लोग बुक में देखिएगा। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 न्यू डॉटर सेल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल डिवीजन। तो ये हो गया आप लोगों का चैप्टर्स। आप लोग एक कमेंट में पूछे थे कि ड्राइंग करना जरूरी है कि नहीं। यस, जरूरी है। जो भी हम बोर्ड में ड्राइंग कर रहे हैं, आप लोग फाइल कॉपी में, जो फाइल कॉपी बायोलॉजी के लिए आप लोग रखे हैं, उस फाइल कॉपी का लेफ्ट हैंड साइड में जो व्हाइट पेज होता है उसमें ड्राइंग कर लीजिएगा। जो भी हम बोर्ड में ड्राइंग कर रहा है वो करना है। और ये जो डिफरेंशिएट बिटवीन में हम दो ड्राइंग किया है, ये दोनों अलग अलग पेज में करना है, क्योंकि एग्जाम में आइदर प्लांट सेल या एनिमल सेल ड्राइंग करना अगर पड़ेगा तो एक ही सेल ड्राइंग करना आता है। ठीक है, तो अगर प्लांट सेल बोले तो ये ड्राइंग करना है, एनिमल सेल बोले तो ये ड्राइंग करना है, एक साथ दोनों आता नहीं है, इसीलिए अलग अलग करके आप लोग ड्राइंग कर लीजिएगा। ये हम ड्राइंग किए हैं आप लोगों को डिफरेंस समझाने के लिए। आप लोग अलग अलग पेज में इसका ड्राइंग कर लीजिए। नेक्स्ट डे हम लोग शुरू करेंगे इसका जो एक्सरसाइज है वो। तब तक के लिए आप लोग ये ड्राइंग कर लीजिएगा और चैप्टर पढ़ लीजिएगा, जैसे कि आप लोगों का एक्सरसाइज समझने में आसान होगा। ओके।